न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मॉडर्न फर्नीचर गोदली। शिल्पांचल में बाढ़ के बाद हुई गंदगी से लोग परेशान, नगर निगम पहुंचकर लगा रहे हैं गुहार। कांग्रेस ने भी प्रशासन से कहा कि लोगों के राहत कार्य में हो रही दुर्नीति। तृणमूल कांग्रेस नेतारा काटमानी खावार चक्करे যেভাবে ফর্ম বিলি শুরু করেছে এটা বন্ধ করতে। फुटपाथ में दुकान हटाने पहुंचे नगर निगम कर्मी से भिड़े दुकानदार। आप यहाँ पे रहिए, कोई बात नहीं, आप किधर से बोल रहे हैं ना, हम उठाने देंगे अभी 1000 मेहतर। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत 79 नंबर वार्ड के स्थानीय नागरिकों ने मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। इन लोगों का कहना है कि 79 नंबर वार्ड में शास्त्री नगर, शांति नगर, रहमत नगर के इलाकों में काफी पानी जम गई थी, जिस कारण वहां गंदगी फैल गई है। इससे वहां के लोगों का जीना दूभर हो गया है। अविलंब वहां सफाई करवाई जाए और लोगों के लिए राहत पैकेज भेजा जाए। ज्ञापन सौंपने आए स्थानीय नागरिक ने कहा, নম্বর ওয়ার্ড যেটা সুভাষপল্লী, শান্তিনগর এবং আহমদনগর নিয়ে এখানে আমাদের সিপিএমের কাউন্সিলর বিধান রায়, উনি আজকে প্রায় 10-12 বছরের কাউন্সিলর, কিন্তু উনি সেইভাবে এলাকাকে দেখেন না, যার দরুন আজকে সুভাষপল্লী, শান্তিনগর, আহমদনগর এলাকায় এত পরিমাণ বাড়িতে জল ঢুকেছে। আমার মনে হয় দক্ষিণ বিধানসভায়, আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার সবথেকে বাজে অবস্থা শান্তিনগর, আহমদনগর এবং সুভাষপল্লী। আমরা মেয়র সাহেবকে একটা চিঠি দিলাম, এটা কোনো ডেপুটেশন নয়, আমাদের কিছু ছোটোখাটো অভিযোগ আছে। তার মধ্যে যেমন আমাদের যে বড় হাই ড্রেন যেটা নরসিংবান্ধ হয়ে আহমদনগর হয়ে শান্তিনগর, সুভাষপল্লী হয়ে রহমতনগরে গিয়ে মিশেছে, সেই ড্রেনের অবস্থা এত খারাপ যে যার জন্য জল বেরোতে পারছে না, এবং এই জল বেরোতে না পারার জন্য আজকে বাড়ি বাড়িতে বন্যা পরিস্থিতি। আমরা বন্যায় এত ক্ষতিগ্রস্ত যে আমাদের এলাকার মানুষরা না খেতে পেয়ে রয়েছে। আমরা মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করলাম, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অমরবাবুকে, যে আমাদের ওখানে কিছু খাবার ইমিডিয়েট পাঠাবার জন্য, এবং যে সমস্ত গার্বেজ জমে রয়েছে সেগুলোকে যেভাবে হোক ইমিডিয়েট পরিষ্কার করার জন্য এবং ব্লিচিং দেওয়ার জন্য। আমরা আশ্বাসন পেলাম যে অমরদা বলেছে 2 दिन থেকে 3 দিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে। চেষ্টা। वहीं इस विषय में चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि वहां का स्थानीय पूर्व पार्षद ने नगर निगम को इसकी जानकारी नहीं दी थी, जिस कारण वहां कार्य सही ढंग से नहीं हो पाया। आगे कार्य किया जाएगा। ওইখানে যারা দীর্ঘদিন ধরে কাউন্সিলর রয়েছে তারা ওইখানে কোনোরকমভাবে যোগাযোগ করে মানুষের সঙ্গে। খুব অসুবিধার মধ্যে মানুষগুলো এই বিপর্যয়ে কাটাচ্ছে, সেই জন্য ওনারা এসেছিলেন। ওখানে একটা হাই ড্রেনের খুব প্রয়োজন। আমি বুঝতে পারছি না যে কেন এতদিন ধরে হলো না। আমাদেরও ক্ষমতায় থাকা 11 বছর হয়ে গেল, তো আমাদেরও বোর্ডে দুবার অনেক বড় বড় কাজ আমরা করেছি, তো কেন ওইটা করতে পারলেন না ওখানকার কাউন্সিলর আমি বুঝতে পারছি না। আমার তো 35 বছর ক্ষমতায় ছিল, শান্তিনগরের মতন একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা করে দেওয়া উচিত ছিল ওনাদের। কারণ স্কুল থেকে স্কুল, ওখানে অনেক CSR ফান্ড ছিল, ইচ্ছা করলে করতে পারতেন, কারণ অনেক বড় বড় নেতা ছিলেন ওনারা। তো দেখি, আমরা আজকে বললাম যে এডিডিএর মিটিং আছে, তো এডিডিএর মিটিংয়ে কমিশনার স্যারকে অনুরোধ করলাম যে, কারণ উনি তো আমাদের ওখানকার সিইও, এবং চেয়ারম্যান স্যারকেও আমি তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অনুরোধ করলাম যে যদি এই কাজটা ওনারা ধরে করে দিতে পারেন তাহলে ওখানে অনেক মানুষ উপকৃত হয়। বারবার বানভাসিতে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়, যদি ড্রেনটা হয়ে গেলে যদি ওনাদের ক্ষতি থেকে ওনারা আমরা বেঁচে যান তাহলে আমরা উপকৃত হই এবং আমরা খুশি হই। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. शिल्पांचल में आई बाढ़ के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, उसे लेकर आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस एवं कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से आसनसोल नगर निगम प्रशासन को कई दफा मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पोइटंडी ने आरोप लगाया कि बाढ़ से ग्रसित हुए लोगों को राहत पहुंचाने के नाम पर टीएमसी के लोग दुर्नीति कर रहे हैं। কংগ্রেস দল করেছিল বলে আন্দোলনগুলো, যে কংগ্রেস দলের কথাতে কাজ করব সেই জন্য হয়তো কর্পোরেশন করেনি বা সরকার করতে চায়নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষতি সাধারণ মানুষের। বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের বাড়ি ঘরদোর ভেঙে গেছে, ছাদ উড়ে গেছে জলে, জিনিসপত্র প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, বাজারের দোকানদারদেরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে
পুজোর মরশুম, দুর্গা পুজো, কালী পুজো, ছট পুজো, পুজোর মরশুমে মানুষ মানে আকাশের নিচে বসবাস করছে, ছাদ নেই। আমরা তাদেরকে নিয়ে এসেছিলাম, অনেকের বাড়ি ঘর তো চলে গেছে, যে অবিলম্বে তৃণমূল পার্টি অফিসে শুরু হয়ে গেছে, দোকানদারি খুলে বসে গেছে, যারা বিগত 1 বছর আগে যাদের কাউন্সিলর ডিসেন্ট হয়ে গেছে তারা অফিস খুলে বসে গেছে, ফর্ম বিলি করছে। কিসের ফর্ম ভাই? সেটাই জানতে চাইছিলাম যে আপনারা কি কিছু ফর্ম ছেড়েছেন? দেখা গেল কোনো ফর্ম নেই, সাদা কাগজে টু দি চেয়ারপারসন বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা টু দা ডিএম করে চিঠি করলেই যে আমার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার ইন্সপেকশন হবে এবং যার যতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা কর্পোরেশন থেকে প্রদান করা হোক। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা কাটমানি খাওয়ার চক্করে যেভাবে ফর্ম বিলি শুরু করেছে এটা বন্ধ করা প্রধান উদ্দেশ্য। গরিব মানুষ তাদের হকের টাকা যেটুকু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাদের হক পায়, এটা ছিল 1 নম্বর ইস্যু। 2 নম্বর ইস্যু ছিল যে কর্পোরেশন এলাকাতে অনেক জায়গাতে পিএইচির জল সাপ্লাই হয়। এখন পিএইচির লাইন আপনারা জানেন, কংগ্রেসের যখন সরকার ছিল পশ্চিমবঙ্গে 72 থেকে 77, সেই সময় আসানসোলে পিএইচির লাইন বিছানো হয়েছিল। সেই পিএইচির জল অনেক জায়গায় বন্ধ, বিগত 4 দিন ধরে জলের জন্য হাহাকার চলছে। वहीं कांग्रेस आईटी सेल के नेता मोहम्मद जाकिर ने कहा कि रेल पार के लोगों को जल्द से जल्द हुए नुकसान की भरपाई की जाए। आज हम लोग कॉर्पोरेशन में डिप्यूटेशन दिए कि बृहस्पतिवार के दिन जो पानी ने डालना बताया पूरे शहर आसनसोल, जिंदाल नगर, रानीगंज, कालीपाड़ी, उसी को लेकर रेल पार बहुत सारे घरों में, बहुत सारे दुकानों में पानी दाखिल हुआ, जिससे करोड़ों से ज्यादा का नुकसानी हुआ है। हम लोग डिमांड किए हैं कि जिनका घर, जिनका दुकान पानी से डूबा है, जिनका घर बैठ गया है, उनको जल्द से जल्द जो है कॉर्पोरेशन उसको मुआवजा दे। अभी भी बहुत सारा रेल पार, बहुत सारे आसनसोल शहर में बहुत सारा ऐसा घर है जो जहाँ पर जो है उन लोग के यहाँ खाना तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो हम लोग जो है ना तत्काल आसनसोल कॉर्पोरेशन बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी साहब को डिप्यूटेशन सौंपे हैं और हम लोग इसका कोई एक्शन चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसका ये किया जाए, क्योंकि रेल पार खास करके बहुत गरीब इलाका है और पूरा शहर आसनसोल जो है इस पानी में डूबे, बहुत सारा नुकसान हुआ है। एक जान भी जो है रेल पार वार्ड नंबर 26 बाबूतला का एक नौजवान जो अपने फैमिली को निकालते निकालते इस पानी में डूब जाता है। इसके अलावा 3 जाने जो है और जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को सरकार कॉर्पोरेशन बोर्ड से जो है मुआवजा मिले और आने वाले दिनों में हम लोग चाह रहे हैं कि वो जो गरुई रिवर रेल पार से जो गुजरती है, खास करके कल्याणपुर हाउसिंग से लेकर घाघरबुड़ी मंदिर तक, हम लोग पिछला 2 साल से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर कॉर्पोरेशन बोर्ड, आसनसोल के मिनिस्टर और टीएमसी सरकार अगर चाहती उस नदी को सफाई को लेकर चौड़ाई किया जाता, गहराई किया जाता, तो शायद इस तांडव से बचाया जा सकता था। इस विषय में चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। না এনারা এসেছিলেন যে যে দুর্যোগ গেল সেই দুর্যোগের ব্যাপারে মানুষের মনের মধ্যে বিভিন্ন রকম বিভ্রান্ত তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে কিছু মানুষ। তো সেই ব্যাপারে ওনারা এসেছিলেন যে ওখানে কিছু মানুষকে প্লাস্টিক দেওয়ার কথা, কিছু মানুষকে কিটস দেওয়ার কথা, সেটা নিয়ে যেন কোনো রাজনীতি না হয়। তো আমাদের তো সেই রাজনীতি কেউ করছে না, তো হয়তো এনাদের কাছে ইনফরমেশন আছে রেলপারের কয়েকটা ওয়ার্ড নিয়ে সেরকমভাবে। তো তাই আমি আপনাদের মাধ্যমেই বলতে চাই যে আমাদের কোনো ফর্ম টর্মের ব্যাপার নেই যে সরকারি অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে। এটা আমাদের মন্ত্রী এসেছিলেন জাভেদ আখতার সাহেব, উনি বলে গেছিলেন যে এরকম যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং সেখানে আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটক ছিলেন, সেখানে বলে গিয়েছিলেন যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের কিছু আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে এবং সেটা ইনকোয়ারি হবে। তো আমরা সেটাই মানুষকে বলেছি এবং বলতে চাইছি যে আপনারা টুজি ডিএম করে দরখাস্ত করুন একটা সাদা কাগজে, কিংবা আসানসোল পৌর নিগমে টুজি চেয়ারপারসন করে করুন। আমরা এটা সরকারি দপ্তরে পাঠিয়ে দেবো রাজ্য সরকারের কাছে এবং তারপরে এটা ইনকোয়ারি হবে। ইনকোয়ারি করার মাধ্যম দিয়ে এটা যেখানে যেখানে বাড়ি নষ্ট হয়েছে, যেখানে যেখানে বাড়ির ছাদ নষ্ট হয়েছে, যেখানে জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে, সেটা ইনকোয়ারি করে মানুষকে পয়সা দেওয়া যাবে। এবং ওনারা পিএইচির জলের কথা বলছিলেন, আমরা এখনো যেখানে পিএইচির জলের ব্যাপার আছে সেখানে আমরা ট্যাঙ্কার করে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल,
वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली, समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल बाजार में फुटपाथ एक बड़ी समस्या रही है। मंगलवार को आसनसोल बस्तीन बाजार के एक स्थानीय दुकानदार ने अपने दुकान के सामने लगे फुट पर दुकानदार के विरुद्ध प्रशासन से गुहार लगाई, जिसके एवज में नगर निगम की ओर से दुकान हटाने के लिए लोग आए, किंतु फुट पर लगे दुकानदार नगर निगम के लोगों से यह कहकर भिड़ गए कि उन्हें हटाने का ऑर्डर दिखाए और उनके तरह जो भी दुकानें लगी हुई है उन्हें भी हटाया जाए। सीसी कैमरा लगा हुआ है, बैठ के हमारे अगर दुकान नहीं होगा तो हम चैलेंज कर रहे हैं, हटा देंगे, अभी हटा देंगे। बैठ के सीसी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए। बात करेंगे आप चिल्लाइए मत, आप फोन लगाइए, कोई बात नहीं। अभी 1000 इस विषय में जब फुटपाथ के दुकानदार से पूछा गया तो उन्होंने कुछ यूं बयां की। साल से यहाँ दुकान लग रहा, ठीक है ना। पहले किसी का दुकान नहीं लगता था, कोई कुछ नहीं था, मेरा लगता था यहाँ पर, ठीक है। हल्का हल्का लगता है कि सारा दुकान लगने लगा, ठीक है ना। इनको सारा दुकानदार से किसी को किसी में सामने में तकलीफ नहीं है, इनको ज़्यादा हम ही से तकलीफ है। ये चाह रहे कि आप इसका जगह क्लियर करके हम अपना दुकान लगा दे पाए, इसीलिए हमको हटाना चाह रहे हैं। इनको मौका मिल गया, बाढ़ वगैरह पानी आया कि निकल गया, हमारा रास्ता मिल गया, समय क्लियर हो गया, हम अपना काम कर लेंगे। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी चाह रहे हैं जैसे उनका लगा हुआ तो वैसे लग जाएगा। हम बाल बच्चे जा रहे हैं, फैमिली बच्चा हम तो उनका दुकान में यहीं रख देंगे। जब फैमिली बच्चा लाके उनका अभी कारपोरेशन से आदमी लोग आए हैं तो उनको रोका जा रहा है। आप लोग का कारपोरेशन से रोका जा रहा है कि कारपोरेशन खाली एक ही के लिए कंप्लेन से आए हैं। इतना सारा जो दुकान लगा उन लोगों को तकलीफ नहीं, उन लोग को भी उठाए, फिर सबको उठा के क्लियर कर, हम अपने आप उठा के रख देंगे गाड़ी में। 15 साल से लगा रहा है। अभी बात करें, बोले कारपोरेशन का अधिकारी लोग आया अभी सामान उठाने के लिए, आप तो हमको ऑर्डर दीजिए। किस चीज का ऑर्डर? इस चीज का फूड उठाने का ऑर्डर दीजिए। आपके पास यहाँ लगाने का ऑर्डर है? लगाने का ऑर्डर है, लगाने का ऑर्डर है। टोटल आदमी वैसी लगाया हुआ है। आप वो टोटल आदमी वैसी लगाया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लिए कितने बंदे के पास वैसी लगाया हुआ, सबका दुकान के सामने लगा हुआ है। यहाँ पे किसी का परमिशन नहीं है। आप जाइए यहाँ से सर्वे कीजिए, फूड से लेके यहाँ से लेके पूरा फूड हटेगा, फिर टोटल आदमी का परमिशन नहीं है। तो फिर ये दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत इनको ये हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि मेरा कस्टमर को, लेडीज कस्टमर को कुछ ना कुछ रुके कैसे बोलते हैं लेडीज? हाँ बोलिए ना भाई। लेडीज कंप्लेन है मेरे पास लिखा हुआ। अरे 2 मिनट हमसे तो बात करने दीजिए। क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत यही हो रहा है इनको कि गरीब आदमी है, रोज पानी जमाने का 12-15 साल से यहीं पे कर रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं था। आज बाढ़ का पानी इसका पूरा माल समेत लेके भाग गया। उसके बाद इनको मौका मिल गया, किसी मौके में हम इसको हटा दें। थाना में जाके बैठकी हुआ, थाना में बात बोला, बड़ा साहब था, वो बोला मेरा ऑर्डर नहीं है, आप कारपोरेशन में जाके वहाँ से ऑर्डर पास कीजिए। वहीं शिकायतकर्ता दुकानदार से पूछा गया तो उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। क्यों ये झमेला हो रहा है? एक तो इन्हें हमने दिया था रोड में बैठने के लिए, जब मेरा दुकान खुला नहीं था, करीब 6-7 साल पहले, 8 साल पहले करीब खुला नहीं था। इनको बाहर मैंने बैठने हमारे से परमिशन लेकर ज़मीन पे लगाए थे कुछ दिन के लिए। बोले थे जैसे आपका दुकान खुल जाएगा हम यहाँ से हट जाएंगे। फिर ये क्या किया, हम दुकान खोलने के बाद भी फिर भी ये लगाते रह गए। उस टाइम बहुत लड़ाई की, एकदम हटे ही नहीं। हमने पुलिस को भी कॉल किया, पुलिस हर बार बोलते थे आप पहले क्यों नहीं बताए, जबकि हम इमीडिएटली उसी टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं। पर पुलिस का यही एक ही चीज़ हमेशा रहता है कि पुलिस हमेशा बोलती है कि आप समय पे कॉल क्यों नहीं किए। अरे समय पे आप फ़ोन भी तो नहीं उठाते हैं, समय पे फ़ोन उठाइए।
आप बोलते हैं ठीक है सिर्फ पाठाबो, किंतु 1 घंटा 2 घंटा के बाद कोई आता है, सब लोग सेटल हो जाता है तब आता है, तो वैसे में तो कुछ होगा नहीं। दूसरा बात है, ये फिर छोटा सा लगाकर अब हर साल जैसे मैं कहीं बाहर जाता हूँ, कोई काम से जाता हूँ, ये इनका बढ़ जाता है साइज, फिर उनको कुछ बोलने से गाली गलौज होता है, मारने का बात करते हैं, जान का धमकी देते हैं बात बात में कि आप लोग काट देंगे, मार देंगे। उसके बाद क्या है कि इनको खुद लगाने के लिए दिया था, ये बोलते थे गरीब आदमी है, तो ये खुद लगाते थे। आज क्या कर रहे हैं, 2 आदमी को अपना लगाकर उनसे अब ये अपना रेंट उठा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर डिस्टर्ब भी कर रहे हैं उल्टा कर। ये सिकंदर भाई जो है, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाहते हैं कि पूरा फुटपाथ क्लियर हो जाए, आसनसोल पूरा क्लियर हो। मेरा तो एटलीस्ट हो ही, मेरा दोनों तरफ दुकान पूरा घेरा हुआ है, उससे मेरा एक दुकान का सेल घट रहा है। मेरा सेल्स बहुत अच्छा हुआ करता है दुकान का, पर दोनों तरफ से आज घेर दिया गया है, तो मेरा सेल्स में बहुत इफेक्ट आया है। 95% का सेल में इफेक्ट आया है। अभी आप तो लोग आज क्या है, मेरा पहले 6 स्टाफ हुआ करता था, 5 स्टाफ हुआ करता था, आज उसमें से 2 स्टाफ का भी मैं सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ। और ये सर, ये कोविड का कारण नहीं है, कोविड से पहले से ये सिलसिला मेरा चल रहा प्रॉब्लम, ये जो सेल डाउन का 2 साल से मैं झेल रहा हूँ इसको। आप अगर बोलते हैं कोविड के कारण सेल, ऐसा नहीं है, कोविड के पहले भी मेरा सेल बहुत डाउन हुआ करता था और इसी कारण से हुआ है। जब से लगाएंगे, आप मेरा बैलेंस शीट देख सकते हैं, जब से ये लगा है तब से मेरा 70 से 80% का सेल डाउन हुआ है। ये आप लोग कंप्लेन कहाँ किए हैं? हमने थाना में बहुत बार कंप्लेन किया है, पर वो कॉर्पोरेशन में हमने वर्बली कंप्लेन किया है, पर कॉर्पोरेशन वाले बोलते हैं देखो আমরা কিছু করতে পারবো না, ऊपर থেকে আছে, ওদের परमिशन আছে। भैया ऊपर से अगर कंप्लेन है, आप एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है, तो एम्प्लॉयमेंट हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो आप? हमारे पेट में क्यों लात मार रहे हो आप? अच्छा, आज तो कॉर्पोरेशन आई है आदमी को लेकर, तो ये लोग उठाने दिया है? अभी तक तो उठाने नहीं दिया है, शायद उठा लें, देखते क्या करते हैं। फिलहाल खबर लिखे जाने तक दुकान नहीं हटाई गई। आसनसोल शहर को सौंदर्यीकरण करने के लिए माकपा के शासनकाल में ही इन फुटपाथ के दुकानों को हटाया गया था, जिसे गिरजा मोड़ के करीब दुकान बनाकर शिफ्ट किया गया था। किंतु फुटपाथ में आहिस्ता आहिस्ता कर फिर से अतिक्रमण होने लगा और मौजूदा दौर में इन फुटपाथों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही, जिस कारण बाजार में लोगों के चलने की जगह भी बिल्कुल संकीर्ण हो गई है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. मंगलवार को INTT-UC नेता राजू अहुवालिया के नेतृत्व में कई CNG ऑटो चालकों ने CNG गैस के बढ़ते कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां उपस्थित राजू अहुवालिया ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों से हाथ मिलाकर गरीबों का शोषण कर रही है। विभिन्न जो फाइनेंस है, उनको फाइनेंसर लोग अपना किस्ती का पैसा जुटा रहे हैं। गैस का पहले दाम था 57, उसके बाद हुआ 61 रुपया, उसके बाद हुआ 64 रुपया 25 पैसा, 2-3 दिन से हटा 6 रुपये करके बढ़ा दिया है CNG गैस का दाम। आज 70 रुपया 25 पैसा गैस का दाम है। किसी को कोई सूचना नहीं है। एकदम केंद्र की जो बीजेपी सरकार है, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को देकर लोगों को शोषण कर रही है। जो गरीब ऑटो जो चलाते हैं, जो ऑटो के ड्राइवर हैं, उनको परिवार चलाना मुश्किल हो गया। 6 रुपया पर केजी पर गैस का दाम बढ़ना, ये बहुत ही दुख की बात है। लोगों से ये अनुरोध है कि ऐसी जनगण विरोधी बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की जो सरकार है, उसको उखाड़ फेंके। जो किसान विरोधी है, जनगण विरोधी है, प्रत्येक दिन जो खाने पीने की चीज़ों का दाम बढ़ा रही है। आप देखिए, आपके सामने है कि किस तरह से शोषण कर रही है। हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम लोग जो अडानी की जो CNG कंपनी है, हम लोग उनसे बार बार यही बात बोलना चाहते हैं कि आप बिना जानकारी के, बिना कोई नोटिस के हठात आपके मन में आया, आपको सपना दिया नरेंद्र मोदी का कि दाम बढ़ा दो और देश को लूट लो, वो नहीं चलेगा। कानपुर के स्टेशन रोड बाजार में मोहल्ला को लेकर पटाखा दुकानों में जबरदस्त भीड़ देखी गई। लोग पटाखा खरीदने के लिए उमड़ पड़े थे। आलम यह था कि पटाखा दुकान के सामने सड़क पर जाम लग जा रहा था। आसनसोल शिल्पांचल में मोहल्ला की सुबह पटाखा फोड़ने की रिवाज है। हालांकि कोलकाता समेत बंगाल के कई हिस्सों में मोहल्ला के दिन पटाखा नहीं फोड़ा जाता है।